everyone, hope you all are doing really well. This is Mansi Chaudhary and welcome to my channel The Commerce Junction. So we have already learned the meaning of basic terms used in accounting. Now let us proceed further with the accounting mechanism. So what is accounting mechanism? It is a method of recording business transaction. So accounting mechanism क्या है? It is a method of recording business transaction. जिस mechanism के through, जिस method के through आप अपनी books of account में कोई entries, कोई transactions record करते हो, that is known as accounting mechanism, right? अब हम कौन सा accounting mechanism use करते हैं? We use double entry system, right? So now let us move further with the double entry system. What is double entry system? Double entry system, as it is clear from its name itself, it has the word double in it. So double here means every entry will have twofold aspects, right? That means it have double effect. If you are receiving something, तो आप उसके बदले में कुछ पे भी करोगे. There will be a give and take situation, right? So अब इसके twofold aspect क्या होते हैं? One is receiving aspect, other is giving aspect. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि what was the transaction? It is transfer of goods and services. Transfer of goods and services. So transfer में क्या होता है? Exchange, लेन देन होगा किसी चीज़ का. अगर आप कुछ ले रहे हो तो बदले में कुछ पे करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आप कुछ रिसीव भी करोगे. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इफ यू आर रिसीविंग समथिंग, you have to pay in return as well, and if you are giving something, you will eventually receive something in return. Thus, important point over here is that this receiving aspect should equate with the giving aspect. These two should match with each other, right? For example, if I bought a car worth rupees 10 lakhs, 10 लाख की कार परचेज की मैंने. अब एक तरह की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है. फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस हूँ, मैंने किसी से कार ली है, दैट विल बी एन आउटसाइडर. तो आउटसाइडर भी है, ट्रांसफर भी हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड कैश का. सो इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. नाउ अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? आप कार रिसीव कर रहे हो और बदले में क्या पे कर रहे हो? 10 लाख पे कर रहे हो. लेन देन हो रहा है. यू आर रिसीविंग कार एंड यू आर पेइंग 10 लाख रुपीज. सो एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, यू आर रिसीविंग कार एज पर द रिसीविंग एस्पेक्ट एंड यू आर पेइंग 10 लाख रुपीज एज पर द गिविंग एस्पेक्ट. नाउ अब 10 लाख क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि कार की वैल्यू कितनी की है? 10 लाख की है. सो दीज टू automatically equate with each other. Done. Technically, every transaction involves two accounts, that too on the opposite side. Same example continue कर रही हूँ. अब यहाँ पे क्या था कि आपने 10 लाख की एक कार परचेज की, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो आप कार ले रहे हो, दूसरा आप कैश दे रहे हो, राइट? तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ गए आपके. दो अकाउंट कौन से आए हैं? एक आया आपका कार अकाउंट, दूसरा आप क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो. सो आई एम रिपीटिंग माई लाइन अगेन. एवरी एंट्री, एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड टू अकाउंट्स, दैट टू ऑन दी ऑपोजिट साइड्स. अब देखो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स कौन से थे? कार एंड कैश. ऑपोजिट साइड्स क्या है? यू आर रिसीविंग कार एंड यू आर पेइंग कैश. So this is double entry system, that if you are receiving something, you will have to pay for the same as well. I hope it is clear. Now these two aspects, the receiving and the giving aspect, is itself known as debit and credit in accounts. If you are receiving something, so that amount is debited.
and whatever you are giving that will be credited over here. अब रिसीविंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली डेबिट क्यों करते हैं और गिविंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट क्यों करते हैं? डेबिट और क्रेडिट टर्म्स आई कहाँ से इवेंचुअली, इनका ओरिजिन क्या है? सो एन इटालियन मर्चेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ दिस डबल एंट्री सिस्टम. द पर्सन इज Lucas Pacioli, who is known as the father of modern accounting. So he came up with the idea of double entry system in his journal, where he rendered this system of twofold aspects because we use in daily life. अगर आप बाजार से कुछ लेने जाते हो तो आप बदले में कुछ पे भी करते हो, अगर आप कुछ बेचने जाते हो तो आप बदले में कुछ रिसीव भी करते हो. So this is the basic accounting and this is used in double entry system which is worldwide accepted. अब ये टर्म्स कहाँ से आई? डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आया? सो दो लैटिन वर्ड से ये टर्म डिराइव की गई है, दैट आर, द फर्स्ट वन इज डेबिटर. इट इज अ लैटिन वर्ड. डेबिटर इन लैटिन मीन्स ओड टू मी. ओड टू मी मीन्स कोई मुझे ओ कर रहा है. दैट मीन्स किसी पर्सन ने मुझे कुछ पे करना है, किसी के ऊपर लायबिलिटी है मुझे कुछ पे ऑफ करने की. तो अगर वो पर्सन ने मुझे पे करना है दैट मीन्स मुझे वो रिसीव करना है. रिसीविंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसको डेबिट हो जाएगा. देन द अदर वर्ड्स टू यूज ओवर हियर इज क्रेडिट. इट इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ट्रस्ट और स्टेक. मीन्स किसी पर्सन का कितना इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में, क्या उसका स्टेक है, क्या उसने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज क्रेडिट. सो जो भी उसने मुझ में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया अपना, उसे वो वापस लेना है, उसे वो रिसीव करना है. अब अगर उसे वो रिसीव करना है दैट मीन्स मुझे वो पे ऑफ करना पड़ेगा. आई हैव टू गिव इट. सो एज पर द गिविंग एस्पेक्ट इट विल बी credited. I hope it is clear. So this is double entry system where if you receive anything you have to give the same value as well. This is the basic funda of double entry system. Let us take some examples. For example, I sold a bike for rupees 30,000. Now I am selling the bike. What I am giving? I am giving बाइक ओवर हेयर. कितने में वो बाइक बेच रहे हैं? 30,000 में. दैट मीन्स अगर मैं बाइक बेचती हूँ किसी को, इफ़ आई गिव द बाइक आई विल रिसीव 30,000 कैश. तो मुझे 30,000 का कैश मिलेगा. सो इस ट्रांजेक्शन में ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर मैं 30,000 की बाइक सेल कर रही हूँ तो आई विल रिसीव 30,000 इन रिटर्न एज वेल. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर हेयर. अगर मैं फर्नीचर परचेज करती हूँ वर्थ रुपीज़ 50,000, 50,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया. अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम फर्नीचर रिसीव करेंगे. एज पर द रिसीविंग एस्पेक्ट वी विल रिसीव फर्नीचर एंड इन रिटर्न मुझे क्या पे करना है, मुझे 50,000 का कैश पे करना है. सो आई एम गिविंग 50,000 कैश एज पर द गिविंग एस्पेक्ट. Right? These are the entries for the goods only. We can take the example of services as well. हम किसी से सर्विसेज भी ले सकते हैं, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकते हैं. सो सर्विसेज में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है जो आपके लिए काम कर रहा है. अब अगर वो हमारे लिए काम कर रहा है तो हम उसकी सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं. एज पर द रिसीविंग एस्पेक्ट व्हाट वी आर रिसीविंग, वी आर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम हिम. इन रिटर्न मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सैलरी पे करने की पड़ेगी उसको, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसी तरह अगर हम लोग किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल आई हैव अ बिजनेस एंटिटी एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू समवन, तो उस केस में सर्विसेज क्या हो गया, सर्विसेज मेरी गुड्स हो जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज वी आर डीलिंग इन दोज थिंग्स. आप सर्विसेज में डील कर रहे हो, आप उसी की लेन देन कर रहे हो, उसी का ट्रांसफ़र कर रहे हो. तो यहाँ पे अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे किसी को, वहाँ से जो पैसे आएंगे वो आपके सेल्स होगा. क्लियर? आई रिपीट इट अगेन कि मैंने सेल्स को गिविंग एस्पेक्ट में क्यों लिखा है, बिकॉज अगर मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ दैट मीन्स
वो मेरा बिजनेस है, आई एम डीलिंग इन दैट बिजनेस, राइट। तो जिस चीज़ में आप डील करते हो वो आपके गुड्स हो जाते हैं। तो अगर गुड्स बेचने से आपको जो पैसे आते हैं वो आपकी रेवेन्यू है, आपकी सेल्स है। इसी तरह अगर आपका बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो सर्विसेज प्रोवाइड करने से आपको जो पैसे आएंगे वो आपकी रेवेन्यू है, आपका सेल्स है। सो दैट इज़ वाई हमने इसको गिविंग एस्पेक्ट में सर्विसेज की बजाय क्या लिखा है, सेल्स लिखा है, राइट। अब अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ पेमेंट मिलेगी, आई विल रिसीव कैश। सो रिसीविंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड। I hope it is clear to you all. Now let us move further with some basic rules or principles used in double entry system. In accounting we have 3 types of accounts and double entry system has 3 rules for these separate accounts. So let us discuss what are these accounts. It has 3 accounts, namely real account, personal account and nominal account. These are the 3 types of account available in the accounting. Firstly I will tell you what it is, then we will move further with the rules. Real account क्या है, what is actually involved in a transaction, what you receive and what you pay. आप ट्रांजेक्शन में एक्चुअली कर क्या रहे हो, you are transferring goods, services, cash or any other benefit. So those terms are your real accounts. Second is personal account. Personal account, as it is clear from the name itself, it has the word person in it. So that means these type of account will involve the persons involved in a particular transactions, right. Third one is nominal account. Nominal account is basically what you are doing in the business, what you are incurring, what you are actually earning out of it. So it is your profit, your losses, expenses, revenue, जो कुछ भी आप incur कर रहे हो business में। Done? रूल के अकॉर्डिंगली चलें। रूल नंबर 1 है रियल अकाउंट से रिलेटेड। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अब ट्रांजेक्शन किस में थी, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैश और एनी अदर बेनिफिट। सो वो गुड्स, सर्विसेज, कैश और एनी अदर बेनिफिट इज योर रियल अकाउंट। रूल क्या है कि जो भी गुड्स, सर्विसेज, कैश और बेनिफिट आप रिसीव करोगे उसको आप डेबिट कर दोगे एज पर द रिसीविंग एस्पेक्ट, एंड जो भी गुड्स, सर्विसेज, कैश और एनी अदर बेनिफिट आप पे करोगे उसको आप क्रेडिट कर दोगे एज पर द गिविंग एस्पेक्ट, राइट। जो हमने एग्जांपल ली थी दैट वी बॉट फर्नीचर वर्थ 50,000। सो व्हाट इज देयर इन द ट्रांजेक्शन, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें, फर्नीचर एंड कैश। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वी आर रिसीविंग फर्नीचर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंगली फर्नीचर अकाउंट वुड बी डेबिटेड। उसके बदले में मुझे कैश पे करना है, एज पर द गिविंग एस्पेक्ट कैश विल बी क्रेडिटेड। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली भी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आई एम पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट मूव ऑन टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें हम लोग जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे आपकी ट्रांजेक्शन में उनकी एंट्रीज करेंगे। अब पर्सन्स क्या करेंगे ट्रांजेक्शन में, या तो वो कुछ रिसीव करेंगे या तो वो कुछ पे करेंगे, राइट। सो इस रूल के अकॉर्डिंगली पर्सन्स के हमने क्या करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो पर्सन पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल Mr. A is paying 30,000 rupees to Mr. B। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Mr. A ने Mr. B को 30,000 रुपीज़ दिए। Mr. A यहाँ पे क्या कर रहे हैं, he is giving the cash and Mr. B is receiving the cash. These are the persons involved in the transaction. Now Mr. B is receiving the cash, as per the personal account it will be debited over here. So B's account would be debited and A भी personal account है, A is giving 30,000 to B. So personal account के rule के accordingly credit the giver. A is the giver because he is giving 30,000 rupees. So A's account would be credited over here, right. Next move on to rule number 3, that is nominal account.
नॉमिनल अकाउंट में मैंने बता दिया कि वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके लिए आप बिजनेस करते हो एक्चुअली, या आप बिजनेस में जो भी पैसे खर्च करते हो, और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. सो एज पर दिस रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल incomes and gains. We have discussed it in the previous video, what are expenses, losses, income and gains. If you haven't watched that video, I'll put the link in the description box below. Do check that and try to understand it. Only then you can move further with these topics, right? Coming back to the nominal account rule, as per the rule of double entry system, all the expenses and losses are to be debited and all the incomes and gains are to be credited over here. That means अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पे. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर डेबिट पे एक्सपेंसेस हैं तो क्रेडिट पे इनकम ही होनी चाहिए. ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डेबिट व्हाट कम्स इन है तो क्रेडिट पे व्हाट गोज़ आउट ही होना चाहिए. इट कैन बी एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन. इट कैन बी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, right? It can be debit all expenses and losses and credit what goes out. It can be debit the receiver and credit what goes out. It can be any sort of combination, but it cannot be debit what comes in and debit the receiver. It cannot be a combination. The combination has to be made between debit and credit. There is no limit with the account. It is nowhere written that real account debit has to deal with the real account credit only. It can be a number of combination. I'll give you some examples. For example, I have a business and I am selling goods for cash. अब अगर मैं सेल्स कर रही हूँ तो मुझे इनकम हो रही है, कैश में मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे कैश रिसीव करूँगी मैं. तो कैश यहाँ पे क्या हो गया, आई एम रिसीविंग कैश, इट इज़ अ रियल अकाउंट. तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. एंड मैं सेल्स कर रही हूँ तो मुझे इनकम हो रही है, इनकम मेरा नॉमिनल अकाउंट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट? इसी तरह अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे ऑफ कर रही हूँ तो मैं सैलरी पे कर रही हूँ, वो मेरा एक्सपेंस है. एज पर द नॉमिनल अकाउंट सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट. एंड मैं पे कर रही हूँ, कैश मुझे देना पड़ रहा है. कैश क्या है, रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, आई एम पेइंग कैश, तो कैश अकाउंट वुड बी credited over here, right? I hope it is clear to you all. We'll take some more examples as well. For example, I deposited 20,000 rupees into a bank account. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन में, मैं 20,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवा रही हूँ. तो मैं 20,000 रुपीज़ पे कर रही हूँ, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आई एम पेइंग कैश, तो कैश वुड बी क्रेडिटेड ओवर हियर. इसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रही हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बैंक बैलेंस. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, राइट? आई परचेज वर्थ 20,000 गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट. मैंने मिस्टर एक्स से 20,000 वर्थ के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए. अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स इन्वॉल्व है, किस पे इन्वॉल्व है, क्रेडिट पे इन्वॉल्व है. मैंने क्या किए, गुड्स परचेज किए, किससे, फ्रॉम मिस्टर एक्स. अब गुड्स इन्वॉल्व है, अगर गुड्स परचेज करते तो वो परचेजेस अकाउंट में चला जाएगा. मुझे ये पता चल गया कि मुझे परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है. क्रेडिट क्या करूँ अब यहाँ पे, ना तो मैं कैश पे कर रही हूँ ना तो कोई और चीज़ पे कर रही हूँ, मैंने तो उधार पे गुड्स परचेज किए. अब दूसरी चीज़ आ जाती है दैट आई एम प्रॉमिसिंग समवन टू पे इन द नियर फ्यूचर, राइट? एक्स को, अगर एक्स से मैंने गुड्स परचेज किए हैं, अभी नहीं पे करूँ तो बाद में तो पे करना ही पड़ेगा. दैट मीन्स ये पर्सन इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे. अगर मैं इसको कैश पे कर देता ऑन द स्पॉट तो इसका कोई लेना देना नहीं था मेरी बुक्स के साथ. मैंने कैश पे किया, मैंने गुड्स लिए, मैंने परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल एंट्री डाल दी. बट अब अगर मैं कैश नहीं पे कर रही हूँ, दैट मीन्स इस पर्सन का स्टेक आ गया मेरे बिजनेस में. हमने टू फोल्ड एस्पेक्ट्स किए ना, गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट है
हु हैव ट्रस्ट और स्टेक, दैट मीन्स इसका स्टेक आ गया मेरे बिजनेस में। अगर आप उस रूल के अकॉर्डिंगली डालोगे तो स्टेक क्रेडिट था, हमने उसको क्रेडिट किया था, तो भी मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा रूल क्या है, मिस्टर एक्स कौन है, पर्सन इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, तो यू कैन यूज पर्सनल अकाउंट रूल एज वेल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे एक ही बंदा इन्वॉल्व है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे गुड्स दे रहा है, ही इज गिविंग गुड्स टू मी, सो ही इज द गिवर, तो एज पर दैट रूल यू कैन क्रेडिट मिस्टर एक्स एज वेल। आई होप इट इज़ क्लियर। इसी तरह अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। मिस्टर वाई को मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं। पहली चीज़, गुड्स सेल हो रहे हैं, दैट मीन्स मेरी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल एज वेल एंड एज पर टू फोल्ड एस्पेक्ट एज वेल। टू फोल्ड एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने सेल्स को क्रेडिट कब किया था, बिकॉज मैं गुड्स बेच रही हूँ, आई एम गिविंग समथिंग, और गुड्स अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है या तो परचेजेस अकाउंट या तो सेल्स अकाउंट। तो अगर सेल्स इन्वॉल्व है तो यू आर यूजिंग सेल्स अकाउंट ओवर हियर, फर्स्ट रूल। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि सेल्स क्या है, मेरी इनकम, मेरी रेवेन्यू, सो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इट इज़ माई इनकम, सो आई कैन क्रेडिट इट इजीली, राइट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, अब मुझे यहाँ से कैश तो आ नहीं रहा, बदले में क्या मिल रहा है मुझे, मिस्टर वाई का प्रॉमिस मिल रहा है। जिस तरह यहाँ पे मिस्टर एक्स को मैंने प्रॉमिस किया था, उसी तरह मिस्टर वाई का मुझे प्रॉमिस मिल रहा है कि उसने मेरे से गुड्स परचेज किए हैं तो वो इन नियर फ्यूचर मुझे पे करेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टर वाई ओड टू मी, इसने मुझे पे करना है यहाँ पे। सो एज पर द रिसीविंग एस्पेक्ट हमने डेबिट क्या किया था, द पर्सन हु ओड टू मी, उस रूल के अकॉर्डिंगली भी आप मिस्टर वाई को डेबिट कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन क्या है, मिस्टर वाई कौन है, पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गुड्स रिसीव कर रहे हैं, सो एज पर दैट रूल यू कैन ऑल्सो डेबिट मिस्टर वाई, right? So this was it for the double entry system. If you like this video, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified whenever I post next video. And comment down below if you have any query or doubt in this session and what other topics you want me to cover. I would love to hear it from you. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.